Student, how are you? Welcome back to Study with English teacher Nisha. So students, few days ago I made a video for the chapter When I Was Old. So today it's gonna be the second part of the same chapter. So just let me remind you that what you studied in the chapter. So in that chapter we saw that how a 12-year kid draws his math teacher cartoon in his notebook during the class. And what happens that he is caught by the teacher because he doesn't have any answer of his question, because he is completely involved in the activities. Drawing में completely involved होता है. And what he draws finally, he draws a tiger's pic seeing his math teacher's face. So the teacher also comes to know that the boy considers him a tiger. It means he is as horrible as a tiger. जो मैथ्स टीचर है उसका, वो उस लड़के को बिल्कुल एक टाइगर की तरह से लगता है, right? So he comes and he gives him punishment also. So that time the boy realized what he realized. Let's see. That time I'm so sorry. That was the time I realized the art of the caricature. I saw, my God, indeed he does look like a tiger. My attempt was not to draw a tiger, but I drew the face of a tiger subconsciously as an extension of the man's personality. To me, he was a tiger. So now what is he telling? He is telling that I never knew that I would draw the picture of a tiger seeing my mathematics teacher. यानी मुझे उसको भी नहीं पता था कि वो जो टीचर की शक्ल बना रहा है वो कोइंसिडेंटली वो एक टाइगर तक की तरीके से बन जाएगी. सो नाउ व्हाट इज हिज फीलिंग दैट दिस इज द आर्ट ऑफ कैरिकेचर. यानी ये कैरिकेचर की एक कला होती है. वट एवर यू फील इनसाइड दैट कम्स इनटू योर आर्ट, जो भी आप बनाते हो. सो ही इज़ वेरी मच सरप्राइज टू सी हिज ओन अटेम्प्ट. जो बना रहा था, कोशिश कर रहा था, ही इज़ हिमसेल्फ वेरी सरप्राइज्ड. So now what he is thinking that whatever he has made, this is true, this is reality for him. He also gets afraid of his math teacher as everybody gets afraid of a tiger. यानी उसको भी मैथ्स के टीचर से बिल्कुल ऐसे ही डर लगता है जैसे कि टाइगर से हर किसी को डर लगता है. सो दैट हैपन्स विद हिम सबकॉन्शियसली. यानी जो भी वो आर्ट बनाता है सबकॉन्शियसली मीन्स जबकि कोई बहुत ही अपने सेंसेस यानी होशो हवास में नहीं होता और वो काम उससे हो जाता है, तो उसको भी नहीं पता चला कि उसने बनाया क्या है. बट वट एवर ही हैज़ मेड वो उसकी अंदर की फीलिंग, इनसाइड फीलिंग्स का रिज़ल्ट है. फ्रॉम देन on it almost became a hobby for me to liken human figures to inanimate objects or animals. So now from the day since he drew his math teacher's cartoon as an animal, so since that day he started feeling, or he made his hobby to consider human figures टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. यानी वो ये मान के चलने लगा कि जितने भी ह्यूमन फिगर्स हैं, जितने भी इंसान हैं, उनको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज़ या फिर कोई एनिमल मान के वो ड्राइंग करने लगा. इनएनिमेट मीन्स जिसमें कोई लाइफ ना हो, नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ आई यूज्ड टू स्टैंड एंड वॉच द सिटी बस. इट ऑलवेज लुक्ड लाइक समवन आई न्यू. People spilling out of the bus began to take the shape of a giraffe or a monkey or a Cadillac belonging to one of the Maharajas of Mysore, which used to stand in the porch next door. So now in the next paragraph, what is he telling? He is saying that now students, he has started imagining that all the human beings are ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स. यानी उसने सारे ह्यूमन बींग्स को कोई ना कोई चीज़ या फिर इंसान मानना,
जानवर मानकर अपनी इमेजिनेशन बनाने लगा, अपनी सोच को उस हिसाब से करने लगा है कि किसी भी इंसान को वो देखकर उसको लगता है कि वो इंसान नहीं, कोई चीज़ है या फिर कोई जानवर है। तो सेम in the next paragraph happening that when he saw people, when he saw people coming out of the bus, जब वो लोगों को बाहर बस के निकलते हुए देखता है, उसने देखा, सो उसको क्या लग रहा है, स्पिलिंग आउट मीन्स कमिंग आउट, वो बस से निकलते हुए ही सॉ दैट बस बिगेन, मतलब जो लोग थे, पीपल बिगेन टू टेक द शेप ऑफ अ जिराफ और अ मंकी, यानी उसको लगा कि द पीपल हु आर कमिंग आउटसाइड दे आर बिकमिंग और दे आर गेटिंग शेप्ड ऑफ अ जिराफ और अ मंकी और अ कैडिलैक। कैडिलैक इज़ द कार जो कि बहुत ही लग्जूरियस कार होती है, बहुत ही महंगी कार, कॉस्टली कार होती है, जो पहले के राजा महाराजा या फिर आज भी लोग जो बहुत ही रिच होते हैं उनके पास होती है। सो कैडिलैक बिलोंगिंग टू वन ऑफ द महाराजाज ऑफ मैसूर, मतलब जो शेप है, भीड़ का जो शेप है, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर एज जिराफ, मंकी और कैडिलैक, एंड विच यूज टू स्टैंड, और वो जो कैडिलैक है, ऐसा लग रहा है कि जो मैसूर के राजा जो थे वो यूज़ करते थे। एंड कैडिलैक जो कार थी, दैट यूज टू स्टैंड इन द पोर्च नेक्स्ट डोर, और उसके घर के बगल के जो पोर्च है, जो बरामदा है, उसमें खड़ा हुआ वो जो कैडिलैक है वो खड़ी होती है। टू मी इट लुक्ड लाइक अ प्रिंस। नाउ ही इज़ सेइंग दैट जो ये सीन है, इट लुक्ड लाइक अ प्रिंस, उसको लगता है जो पूरा सीन चल रहा है, इट इज़ एज सिमिलर एज प्रिंस की तरीके से, एक राजा की तरीके से, राजकुमार की तरीके से। एंड देयर इज़ यानी वो जो कार है एक राजा यूज़ करता है, और वो जो राजा है, दैट पर्सनालिटी, लेट्स सी उसकी पर्सनालिटी में उसको क्या चेंजेस लगते हैं। एंड देयर इज़ अ पर्सनालिटी दैट गेट्स रब्ड ऑफ ऑन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। अब उसको लगता है कि वो जो राजा है उसकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो गई ही इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट में, यानी नाउ हर इंसान उसको जानवर और कोई चीज़ की तरीके से दिख रहा है। एवरी डे I feel that I got nothing out of the 2 + 4 - 1, but I gained something invaluable the day in the classroom. Now he's saying कि सिटिंग इन द मैथ्स क्लास आई गेंड नथिंग, मुझे कुछ हासिल नहीं होता है, मतलब इनवैल्यूएबल, जिसका कोई मूल्य ना हो, दैट हैज़ नो वैल्यू। आई विल टेल यू ऑफ another incident that is connected with the art of caricature. Now he is telling in the another paragraph about one of the incidents of his own life that is related to caricature, यानी उसकी art से related है। The art I have chosen is one which rubs everyone on the wrong side. Now he is telling that art, जो कि art, caricature which he has chosen, basically what happens that always is drawn the wrong side of the people, यानी लोगों की जो wrong side है उसका गलत तरीके से, उसको गलत तरीके से बन जाती है या फिर गलत तरीके से शो की जाती है। यानी जो कार्टून होता है बेसिकली क्या होता है, अगर इफ़ समबडी ड्रॉज यू या मेक्स योर कैरिकेचर, आपका कोई कार्टून बनाए, तो वी नेवर लाइक, बिकॉज हमें लगता है कार्टून बचकाने होते हैं, और जो रियल पिक्चर होती है वो स्केचिंग है, बहुत ढंग से स्केचिंग है, पेंटिंग के थ्रू उसको शो किया जा सकता है। सो व्हाट ही इज सेइंग दैट जो कार्टून है इट इज़ समवेयर आर्ट जिसके थ्रू जो लोगों की पिक्चर बनती है वो थोड़ी सी रॉन्ग साइड, उसको लोग गलत तरीके से देखते हैं। From the prime minister to the policeman, from the president to the priest, they are all ridiculed. It means जो भी, अगर हम प्राइम मिनिस्टर से लेकर पुलिसमैन, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू प्रीस्ट, हम किसी प्रीस्ट मतलब पुजारी, या फिर हम किसी बड़े से बड़े पर्सनालिटी की
नो कैरिकेचर बनाए या फिर किसी पुजारी की कैरिकेचर बनाए, दे आर ऑल रेडिक्यूल्ड, यानी बहुत अच्छे वो नहीं लगते हैं और उनका कार्टून हमेशा मजाक के लिए बनता है. दैट्स वाई पीपल डोंट लाइक देम टू बी मेड लाइक कैरिकेचर या फिर टू मेड लाइक अ कार्टून. That is my profession, so long as it's about other people like it. But still, now he is saying still people are there जो इसको पसंद करते हैं. That is it's my profession and people are around me who like my art and who like the way I do, or even they like the art of caricature. So this is for today. This is all for today, students, and I would say the words which I have underlined, again just go through all the words in your dictionary and get the meaning of it and write the Hindi or English meaning just above the words, so that while reading you should not be confused, and any sentence or any word you are getting troubled, you can ask me. So children, take care, stay home, bye bye.